Good morning, Bacho. How are you? In this video, we are going to talk about arithmetic progression. So, this is a third video which I am going to, develop for you. दो वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, जहाँ वेयर वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एंड टर्म कैसे निकालते हैं उनका, different formulas and all. So this is in that series. This is a third video जहां हम लोग बात करेंगे sum of n terms of arithmetic progression. कैसे होता है? There are few formulas which is and this exercise is also very important. क्लास 10th में फिफ्थ चैप्टर है सीबीएसई की, सीबीएसई में एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, हायर क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये सम कैसे निकाला जाता है एंड उसको हम कैसे यूज करते हैं. सो आई एम गोइंग टू टीच यू, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट एक्सरसाइज. आप लोग इसको देखिएगा और सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. एंड आई थिंक आफ्टर दिस वीडियो, आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो, आपका जो क्वेश्चंस होंगे, कंसर्न्स होंगे रिलेटेड टू सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, काफी हद तक क्लियर हो जाए. सो विद दिस लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें पता है क्या होता है. फर्स्ट टर्म क्या होती है, जस्ट आई एम जस्ट गिविंग अ क्विक रिकैप. बाकी मैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो जो बनाया था उसकी लिंक मैं यहाँ डाल दूंगा इस वीडियो में, तो आप उसको भी देख सकते हैं. फर्स्ट टर्म इज ए होती है. कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट टर्म एंड द प्रीवियस टर्म is called common difference, which is denoted by d. N is a number of terms. So here the another formula is sum of the first n terms of an AP. किसी एपी का सम कैसे निकालते हैं? तो दिस इज वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच वी नीड टू रिमेंबर. एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 into d. अब here if we further define this formula, we can also write, in case if we have first term and the last term of an AP is given with number of terms, you can use another formula for finding out the sum of first n terms of an AP, which is Sn is equal to n upon 2 bracket a plus an. इसी फॉर्मूले से ये derive हुआ है. So this is second formula. We know that an is, which is the last term, can also be represented by an. Hence we can also write this Sn is equal to n upon 2 plus a bracket a plus n, first term plus last term. So this is what the sum of first n term, always sum of first n terms of an. Here L we know, we have already studied. L और last term क्या होता है हमारा? nth term of an AP, which we generally call it an is equal to a plus n minus 1 into. Okay. Here another important formula, you know, कई बार क्या होता है कि आपको सम दिया होता है, sum of n term, sum of third term, sum of fourth term, and from that you need to find out number of terms, first term, second term, third term आपको निकालना होता है. तो उसके लिए यदि आपको ऐसा दिया है कि सम दिया हुआ है, सम ऑफ n terms, and you need to find particular term, seventh term, eighth term, तो how do we find that? उसके लिए एक ये फॉर्मूला है, you should remember this formula. You can also find nth term of an AP, which is an is equal to Sn minus Sn minus 1, means sum of n terms minus sum of previous term like n minus 1 term. So this is another formula which is very important. I will also explain you how to use this formula while solving a question. ठीक है, ये आपके बुक के अंदर क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करूँ. यहाँ पर Sn क्या है हमारा? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म. Sn minus 1 is सम ऑफ फर्स्ट n minus 1 term, मतलब one term previous of n term. So how you, while using this formula, how we can find out the value? For example, if we need to find second term, तो second term क्या होती है? We know second term is a2. a2 is equal to, so n is equal to 2 here, so we can directly put this value s2 minus s2 minus 1, which is s1. So a2 is equal to s2 minus s1. Similarly, if you need to find 15th term of an AP, which a15 क्या होगा? s15, sum of 15 term minus sum of 14th term, s15 minus s14, and so on. So that is how we can find out. Okay, this is second formula. And this is, there is one interesting formula is also there, sum of first n positive integers. If they ask you, if anyone is asking you how to find out sum of first n positive integers, so simple, you can put this formula Sn, sum of n first n positive integers is equal to
n bracket n plus 1 upon 2. That's all. So these three, with these three formulas, we are going to start, you know, solving questions for chapter 5.3, exercise 5.3 for arithmetic progression. So here, this is a book, you know, for class 10th. Here we have already covered some of first and term of an AP. Now let's solve few examples using these formulas. तो यहाँ पे मैं आपको पूरा बताऊंगा कैसे हम इसको solve. So see the first question, example 11. It will start from example 11. Again, as I always mention, first you have to read the question very carefully. After reading question, you have to find two things. One, what is given in that question, and second, what you need to find out. क्या दिया है और क्या निकालना है, ये दो चीजें पता करना बहुत जरूरी है. और यदि आप ये पता कर लेते हो बच्चों, then it will 50% job is done. Remaining 50 will do. Okay. So find the sum of first 22 terms of an AP. So here AP is given. क्या दिए AP हमें? 8, 3, minus 2 and so on. So while seeing this AP, we can easily say first term क्या होगी इसकी? The first term of AP is 8 and common difference is second term minus first term or third term minus second term. So D is equal to 3 minus 8, which is minus 5. So this is also given. And first 22 terms means n, the value of n is given, which is 22. Now simply use this formula Sn, which we have already learned. Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. n की वैल्यू यहाँ पे 22 है, a वैल्यू दी है 8, 22 minus 1 और d दिया हुआ है minus 5. Just put this formula, solve the brackets, and you will get the answer. Sum of 22 terms. Easy. So this is example 11. Now let's try to solve another example. Now it's fine. So the second example is find the sum of first 14 terms of an AP. So it is given if the sum of first 14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10. You need to find 20th term. तो 20th term निकालना means हमें दिया क्या है यहाँ पे देखो. Again, very simple. What all things are given? Sum of first 14 terms of an AP. It means S14 is given, which is 1050. First term is 10. So value of first term A is equal to 10. And first 14 term का sum दिया है तो n भी हमें मालूम पड़ गया. n is equal to 14. And what you need to find is 20th term. So means A20 निकालना है. Okay. तो सबसे पहले हमें 14 दिया हुआ, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? यहाँ से हमें इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिया. So we need to find the common difference first. Okay. कैसे निकालेंगे? As usual, same formula. Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. ये फॉर्मूला लगाएंगे. n की वैल्यू दी है हमें, Sn की S14 दिया हुआ है, n14 पुट किया. 1050 is equal to 14 upon 2 bracket 2 into a is 10 plus 14 minus 1 into d. अब इसको हम काटापीटी करेंगे, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा एंड सॉल्व करने के बाद हमारी जो डी आएगा कॉमन डिफरेंस, दैट विल बी 11. तो दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड इट. अब डी 11 आ गया, डी हमें 11 मिल गया, ए हमें दिया हुआ है ऑलरेडी. तो हमारी 28 टर्म स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग. 28 टर्म क्या होती है किसी एपी की? A20 विच इज a प्लस 19d. ए की वैल्यू पुट कर दी 10, डी की वैल्यू हमने 11 निकाली, सॉल्व करा और हमारा 20th term is 200. That's all. ये क्लियर हो गया है ना? This is example 12. Now let us solve few more examples. I'm just trying to explain you this is very important chapter, you know, for mathematical point of view, competitive exams point of view. And कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. तो यदि हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, कैसे यूज करना है, no, it will be very easy for all. Now example 13. How many terms of AP? अच्छा, AP दिया हुआ है हमें और इसमें टर्म पूछी, how many terms must be taken so that their sum is 78. तो कितनी टर्म लेना है हमें? How many terms? So terms निकालने के लिए what we will do here, definitely हमें क्या करना पड़ेगा? We need to find out n. n निकालना है यहाँ पे हमें.
So n we need to find out. अच्छा, AP is already given. AP कितना दिया है? 24, 21, 28. So if you see this AP, फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 24 हो गई. कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 21 माइनस 24 विच इज -3. सो d इज -3 एंड सम इज 78. So let assume Sn is equal to 78 is given. Now n you need to find. सेम फॉर्मूला सम का लगाएंगे हम, n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Sn की वैल्यू पुट कर दी, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया यहाँ पे. सो 78 इंटू 2 इज इक्वल टू दिस. अब इसको हम खोलेंगे, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जब यहाँ पे सॉल्व करा यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, तो मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से हमारी n की दो वैल्यूज आती. तो n इज इक्वल टू 13 एंड n इज इक्वल टू 4. इज दैट क्लियर? है ना? यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया. अच्छा, अब इसके बाद व्हाट वी नीड टू डू, द नेक्स्ट क्वेश्चन. एग्जांपल 15. इसमें हमने n टर्म निकाली थी, हमारी दो n टर्म्स निकल के आ गए बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी. तो दो वैल्यूज आएंगी n की. सो दैट इज हाउ यू फाइंड गॉट टू वैल्यूज. नाउ एग्जांपल 15. अब एग्जांपल 15 में क्या बोल रहे हैं? अगेन रीड द क्वेश्चन केयरफुली. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स. n कितना दिया हुआ है आपको? फर्स्ट 24 टर्म्स का निकालना है. तो n इज इक्वल टू 24 हो गया. पहली चीज, n इज गिवन 24. of the list of numbers whose nth term is an is equal to 3 plus 2n. तो हमें an दिया हुआ है. देखो, just what they have given, an is equal to 3 plus 2n. एंड हमें फाइंड क्या करना है? सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स निकालना है, मतलब S24 फाइंड आउट करना है. अच्छा, an दिया हुआ है तो कैन वी फाइंड आउट a1 वेयर n is equal to 1. तो 3 plus 2 into 1 5. a2 निकाल लेंगे हम. 3 plus 2 into 2 which is 7. a3 निकालेंगे, n is equal to 3. 3 plus 2 into 3 which is 9. अच्छा, AP दी थी हमें, तो AP हमारी क्या हो गई? 5, 7, 9 and so on. From after seeing this AP we can easily see फर्स्ट टर्म क्या होगी इस AP की? 5. कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 7 minus 5 which is 2 एंड n हमें दिया है 24. अब बचा क्या इसमें? नथिंग. यू जस्ट नीड टू फाइंड 24 टर्म्स सम. Sn का फॉर्मूला लगाया, n की जगह 24 पुट कर दिया, a b और n की वैल्यूज पुट करी एंड इसको हमने जब पुट करा फॉर्मूले में, S24 सॉल्व करके हमारा आ गया 672. एंड दैट्स व्हाट द आंसर इज. Isn't very easy if you know the formula, if you understand the question properly. Questions answers are very easy. Okay, तो ये हमारा एग्जांपल 15 था. इसके बाद हमारे there are few more examples I have solved. So I think I covered all examples, just to explain you the better way. So now the example 16. Example 16 में क्या करें? See, a little big question, थोड़ा सा बड़ा है. कंफ्यूज मत होना, बहुत इजी है. A manufacturer of TV sets produce 600 sets in third year. कितने प्रोड्यूस करता है? 600 सेट करता है थर्ड ईयर में एंड 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर. अच्छा, थर्ड ईयर का हमें नंबर ऑफ सेट्स दिया हुआ है 600 सेट्स इन थर्ड ईयर एंड 700 सेट्स इन सेवेंथ ईयर. तो देखो आप यदि इस क्वेश्चन को इफ यू सी फर्स्ट थर्ड टर्म आपको दी है A3 क्या होती है? A plus 2D. ठीक है, और A plus 2D आपको क्या दिया हुआ है? 600. एंड अनदर सेवंथ ईयर में मींस सेवंथ टर्म क्या दिया है? A7 which is A plus 6D. this is given is 700. now we know these two equations. ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकंड इक्वेशन. अब जब दो इक्वेशंस हैं हमारे पास और दो अननोन हैं, वन इज फर्स्ट टर्म A and second is common difference. So we have already studied this in our previous chapter, linear equation in two variables. You need to find the value of A and B, two variables, using, there are two methods which are in your exam syllabus for class 10. और elimination method से इसको हम यूज करें तो फर्स्ट और सेकंड को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A से A हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा 4D is equal to 100. D की वैल्यू हमारी आ गई 100/4 which is 25. अच्छा, ये D जो 25 आया है, now just put this value of D in any of the equation, either equation 1 or equation 2.
जब इसमें हम पुट करेंगे तो मैंने फर्स्ट में पुट कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो आपका क्या आ जाएगा, a प्लस टू डी इज इक्वल टू 600। सो a प्लस 25 इंटू टू इज इक्वल टू 600। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगी। तो व्हाट फर्स्ट टर्म वी गेट, हियर वी गो। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 550। अच्छा, फर्स्ट टर्म हमें मिल गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, देखो, दे हैव आस्क्ड यू फर्स्ट क्वेश्चन, assuming that the production increases uniformly by the fixed number of uniformly produce हो रहा है इसीलिए एपीटी। फर्स्ट पूछा था प्रोडक्शन इन फर्स्ट ईयर, मतलब यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट टर्म। द प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर मींस टेंथ टर्म A10। तो A10 क्या होती है, अगेन हमें फॉर्मूला पता है, A प्लस 9D एंड टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। तो पहले प्रोडक्शन इन टेंथ ईयर, फर्स्ट टर्म तो आई गई हमारी, है ना। टेंथ टर्म क्या होगी हमारी, टेंथ टर्म A+10 A+9D, विच इज ए की और डी की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, तो हमारा 775 ये भी आ गया। एंड थर्ड उन्होंने पूछा है टोटल प्रोडक्शन इन सेवेंथ ईयर। तो टोटल प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, आपको सम निकालना है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल सेवेंथ ईयर। तो सम निकालने का हमारा फॉर्मूला हमें पता है एपी का, Sn is equal to n upon 2 bracket 2a plus n minus 1 into d. You just need to put value of n which is given 7, a की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है 550 एंड d भी आपने ऊपर निकाला हुआ है which is 25। ये तीनों वैल्यूज पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, आपको सॉल्व करके सम टोटल प्रोडक्शन निकल के आ जाएगा which is S7। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। सो आई ट्राई टू सॉल्व ऑल एग्जांपल्स टू टू एक्सप्लेन यू इन अ बेटर वे। तो आई थिंक अभी एग्जांपल्स हमारे क्लियर हो गए। So good. So now let me also explain you few questions, just to make it more easy. तो इसके पहले हम लोग ये देखते हैं कि if you see this chapter, ये सारे हमारे हो गए। Now let me explain you exercise 5.3. तो if you see exercise 5.3, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ गिवन एपी। आप चारों क्वेश्चन इजीली कर सकते हो, आपको क्या निकालना है, एस एन निकालना है और एन की वैल्यू भी दी है फर्स्ट केस में, सेकंड केस में। फाइंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड सम ऑफ गिवन बिलो। इनका सम निकालना है। अगेन आपको एस निकालना है, फॉर्मूला आपको पता है, लास्ट टर्म दी है और फर्स्ट टर्म दी है, तो और आप इससे इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यदि आप देखो, थर्ड क्वेश्चन में भी आपके डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स दिए हुए। तो हमारे सेम फॉर्मूले, दो फॉर्मूले मेन है, एक nth टर्म का a इज n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और सेकेंड फॉर्मूला हमारा है सम ऑफ n टर्म Sn इज इक्वल टू n अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो दीज टू फॉर्मूलेज यूज करके, और an जो होता है हमारा l के इक्वल होता है, nth टर्म और लास्ट टर्म इक्वल होते हैं, वी कैन यूज दीज फॉर्मूलाज एंड सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वेदर यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस और नॉट नाउ इन अ बेटर वे, ठीक है। तो इसके बाद ये थर्ड क्वेश्चन हो गया आई थिंक। मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व भी करा है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम गिवन बिलो। तो ये हमें क्वेश्चन दिया है 7 प्लस 10 रेशियो 1/2 प्लस 14 प्लस 84, हमें सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले देखिए इसमें ए दिया है हमें, है ना, ए इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, और डी कितना दिया है बच्चों, डी इज ऑल्सो गिवन। डी क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 रेशियो 1/2 मिक्स फ्रैक्शन है, उसको आप इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लोगे 21/2 माइनस 7, तो डी हमारा हो गया 7/, ओके। वन मोर थिंग इज गिवन, ए एन लास्ट टर्म इज 84। अच्छा, सम निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, एस एन इज इक्वल टू व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन और ए प्लस एल, वॉट एवर यू राइट, ओके। बट यहाँ पर हमें एक चीज नहीं पता विच इज एन। तो एन कैसे निकालेंगे, सिंपल, एन निकालने के लिए आपको एक सम एन टर्म्स का फॉर्मूला पता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ ए एन आपको दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, डी इज ऑल्सो गिवन। जस्ट यूज दिस फॉर्मूला एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू आप इसको यूज करके फॉर्मूले को एन की वैल्यू निकाल दो। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, यू कैन इजीली सी द वैल्यू ऑफ एन व्हेन वी सॉल्व दिस, एन इज इक्वल टू 23, है ना, ए एन वाला फॉर्मूला यूज किया तो एन 23 आ गया।
Now what you need to do, just put value of n, a and l in this formula and you will get your answer, sum of n terms. That's all. Okay, so this is what the question is. Fourth question, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट नाइन टेंथ सेम क्वेश्चन से सेम पैटर्न के ऊपर है. आप लोग ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा. इन केस इफ यू आर हैविंग स्टिल हैविंग डाउट इन एनी क्वेश्चन, आई विल अगेन सॉल्व दोस क्वेश्चंस फॉर यू. ओके, नाउ लेट, आई थिंक आई हैव आल्सो सॉल्व वन. तो 11th क्वेश्चन देखते हैं हम इसका. 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है फॉर दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 11. इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एपी. ओके, तो यहाँ पर क्या दिया है उन्होंने, सम दिया हुआ है फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी विच इज 4n माइनस एन स्क्वायर. ठीक है, तो हमें सम दिया हुआ है तो हम क्या फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस एन इज इक्वल टू गिवन विच इज गिवन 4n माइनस एन स्क्वायर. ठीक है, वी नीड टू फाइंड द फर्स्ट टर्म. ओके, विच इज a1 और a. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब s1 प्लस s2, ये आपको निकालना है. थर्ड क्वेश्चन आपको इसमें पूछा है व्हाट इज देयर सेकंड टर्म, मींस a2 second term, and similarly find third term, 10th term and nth term, means a3, a10 and an. तो काफी सारी चीजें पूछी है इस क्वेश्चन में, बट हमें लगता है यार इतना बड़ा टफ क्वेश्चन है, एन दिया हुआ है, कैसे एस एन दिया है, कैसे निकालेंगे. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये ध्यान रखना है दिया क्या है और निकालना है. गिवन व्हाट इज गिवन इज सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स 4n माइनस एन स्क्वायर. यहाँ पर n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म कैसे निकल आएगी, फर्स्ट टर्म जो होती है वो s1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म, n की वैल्यू पुट कर दी 4n माइनस एन स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर विच इज 3. तो ये आपका फर्स्ट टर्म निकल के आ गई, a इज इक्वल टू 3, ये पहला आंसर. नाउ व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो सेकंड टर्म निकालते हैं. सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, n इज इक्वल टू 2, तो सेकंड टर्म आ गई हमारी 4. नाउ दे आर आस्किंग सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये हमारा S2 निकल के आ गया. सिंपल डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर हमने n की जगह 2 पुट कर दिया, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2 निकल के आ गया. तो दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन का आंसर. नाउ व्हाट इज देयर सेकंड टर्म, सेकंड टर्म पूछिए. अब यहाँ पर आपका कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेकंड टर्म निकालना है मतलब A2 निकालना है. तो A2 निकालने के लिए अब आप याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब हमें सम दिया हो और सम के थ्रू हमें nth टर्म निकालनी हो, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला. A2 सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, S2 माइनस S1, करेक्ट. So using this formula we can easily find out the sum of the sum of first two. What is the sum of first two term, first two term का sum हमारा क्या आ जाएगा, A2 which is S2 minus S1. S2 हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, S1 भी हमने निकाला हुआ है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा. सो दिस इज योर आंसर ऑफ सेकंड टर्म, ये भी क्लियर हो गया. अब निकालना है थर्ड टर्म. थर्ड टर्म क्या होगी, a प्लस 2d. अच्छा, यहाँ पर हमें a तो पता है लेकिन हमें d नहीं पता, तो d निकालने के लिए क्या करोगे आप फॉर्मूला लगाओगे a n इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, nth टर्म का. यहाँ पर a हमें पता है 3, तो हमारी nth टर्म क्या आ जाएगी, a n इज इक्वल टू आ गया 5 माइनस 2n. क्लियर. अच्छा, अब a n यदि हमें पता है तो हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म, 100 टर्म कुछ भी निकाल सकते हैं, खाली हमें n की वैल्यू पुट करनी है. तो फॉर एग्जांपल थर्ड टर्म क्या हो जाएगी इस एपी की, a n में आप n की जगह 3 पुट कर दोगे तो 5 माइनस 2 इंटू 3, a3 निकल के आ गया विच इज माइनस. दिस इज आंसर ऑफ थर्ड टर्म. 10th टर्म में n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, a10 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 10 विच इज माइनस 15. दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड nth टर्म, nth टर्म तो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है, 5 माइनस 2n, an इज इक्वल टू. सो दिस इज द आंसर ऑफ. इसके बाद इसमें हम क्या कर सकते हैं, टाटा बाय बाय कर सकते हैं इसको और हम आगे बढ़ जाएं. सारे क्वेश्चंस के आंसर हो गया. अच्छा, इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन और सॉल्व करा हुआ है इसमें, 18 क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग दो क्वेश्चन आई थिंक आई हैव सॉल्व. दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और कई सारे बच्चों को मेरे को आता है, बताते हैं बच्चे कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है इसलिए हमने स्कूल में छोड़ दिया या हम लोगों ने इसको किया ही नहीं, काफी टफ लग रहा है फिगर देख करके. बट यू नो, आप यदि क्वेश्चन में दो चीजें समझ लो, आई ऑलवेज से, क्या दिया है और क्या निकालना है, क्वेश्चन बहुत आसान होता है. देखो इस क्वेश्चन को करते हैं. क्या दिया है, अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल.
सेमी सर्किल दिया है, सेंटर एक बार ए है एक सर्किल का और एक बार उसका सेंटर हो जाता है बी। स्टार्टिंग में सेंटर ए, जब ए सेंटर है हमारा तो रेडियस क्या है 0.5 1 1.5 2 etc. As shown in figure, what is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? तो ऐसे हम 13 consecutive semicircle बनाने हैं, तो हमें n कितना दिया हुआ है, n is already given, ठीक है। अच्छा, अब सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल के अंदर हमारा कौन सा फॉर्मूला होता है, हमें पता है पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई आर। तो यदि सेमी सर्किल है तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर अपॉन 2, 2 से 2 कट के पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू पाई आर। Now, the value of R is different for every spiral. First, R1 is given 0.5. So, R1 is 0.5, R2 is 1, R3 is 1.5, R4 is 2 and so on. तो ये चलता जाएगा. Now, using different R, you can find out different semi parameters. So, first, P1 is equal to क्या होगा pi into R1, put कर दिया 0.5 into pi. So, pi upon 2 centimeter. Okay. So similarly, we can find P2 pi R2 pi into 1 pi centimeter. P3 is 1.5 into pi pi R3 3 pi upon 2 and so on. Now if you see, this has become a series. ठीक है, ये हमें एक सीरीज मिल गई और इस सीरीज को हमने रिप्रेजेंट कर दिया. Now while looking at this, we can say the common difference क्या होता है pi minus pi upon 2 which is pi upon 2 आ जाएगा. So this is common difference D. First term हमें यहाँ पे दिया हुआ है. From this A is equal to pi upon 2. Now you need to find the sum of 13 spirals. Okay. तो 13 स्पाइरल में n कितना हो जाएगा, n हो गया आपका 13, n is equal to 13. आपको सम निकालना है तो एस एन का फॉर्मूला लगा दिया हमने, n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. n की वैल्यू 13 है, a की वैल्यू पाई अपॉन 2 है और d की वैल्यू आपको दी है पाई अपॉन 2. सेम आपने इसको सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व दिस and while after solving this put the value of pi which is already given in question 22 upon 7 and solve करने के बाद जो आपका सम आएगा first 13 consecutive spirals is 143 centimeter and that is the answer. क्लियर है, हो गया. तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ. इट्स नॉट टफ क्वेश्चन, इट लुक्स लाइक डिफिकल्ट बट इट्स नॉट टफ, काफी इजी है. अब इसके बाद एक और क्वेश्चन मैंने किया है, दिस ऑल्सो समटाइम एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी. 200 logs are stacked in the following manner. 20 logs in bottom row, फर्स्ट रो में 20 logs है, सेकंड रो में 19, उसके ऊपर 18, फिर 17, 16 एंड दैट इज हाउ दे आर मेकिंग अ लॉग. बचपन में आपने पढ़ा होगा एक ऐड आता था जुगत लगाने वाला, है ना. तो यहाँ पर वही किया जो हम ताश के पत्तों से कार्ड्स के ऊपर हम खेलते हैं ना, वो अपना बनाते थे बचपन के अंदर. तो उसके ऊपर पहले 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आया और ऐसे हम अपना किला बनाते थे 4. तो सेम चीज यहाँ पर लॉग की फॉर्म में थी. ठीक है, तो हमने इसको बना दिया. अब यहाँ पर क्लियर दिया हुआ है हमें फर्स्ट में कितने हैं 20 लॉग. तो हमारा यदि आप देखो इट इज गिवन एपी क्या दिए 20 19 18 17 सो ऑन. इन हाउ मेनी रोज, नंबर ऑफ रोज निकालनी है, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है. पहला 200 लॉग्स प्लेस्ड, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने दिए 200 दिए हुए. ठीक है, तो इन एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन टॉप रो, और टॉप रो में कितने रोज लॉग्स रहेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपको सबसे पहले ये दिया हुआ है एपी में, एक एपी हमको दिए 20 19 18 17. यहाँ से हमारा अच्छा एक चीज और दी है इन्होंने, सम ऑफ लॉग्स, क्योंकि 200 लॉग्स है टोटल, तो सम ऑफ लॉग्स 200 दिया हुआ है. फर्स्ट टर्म क्या हो गई हमारी, इसको देख के 20 हो गई, और द कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 19 माइनस 20 विच इज -1. तो ये भी हमें पता है. यूज दिस फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2 प्लस एन माइनस 1. यहाँ से हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ से हम एन की वैल्यू निकाल रहे हैं कि कितनी रोज हो. ठीक है जी, क्योंकि यहाँ पे एस एन दिया हुआ है 200, पुट कर दिया. ए की वैल्यू हमको दी हुई है 20, डी की वैल्यू हमें दी है -1, पुट करके ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा. एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस 400 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हो मल्टीपल मेथड से. आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से मैंने यहाँ पर सॉल्व करा हुआ है. सॉल्व करने के बाद आपकी एन की दो वैल्यूज आ. तो व्हाट आर दीज टू वैल्यूज, द फर्स्ट वैल्यू ऑफ एन इज 16, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एन इज 16 एंड सेकंड वैल्यू इज 25. तो ये आपके एन की वैल्यू आ गई.
Now you need to find the n की वैल्यू. ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा. नाउ दे आर आल्सो आस्किंग कि टॉप लॉग्स में कितने रहेंगे. तो यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. अब there are two different values of n, so you will get two different answers of nth term. First you will get when you put n is equal to 16, so a16 which is a plus n minus 1 into d. क्लियर है. ए एन और डी की वैल्यू पुट कर दिया हमने और आंसर फर्स्ट का आ गया a16 आ गया 4. एंड सेकंड a nth term which you will get for 25 logs, a25. तो a25 क्या हो जाएगा. a प्लस 25 माइनस वन इंटू डी. ए एन और डी की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया -4. So you will get two answers. A16 is 5 and A25 is -4. But logs cannot be negative. अब negative logs थोड़ी place करो. Logs तो positive ही होंगे ना. 19, 20, 18, 17. You can't put -3, -5. So minus value cannot be used. We can't use this. So that is how we can say number of logs in 16th row. कितने होंगे? 5. So this is the answer of your second thing which they have asked in this question. So it means if you see 200 logs can be placed in 16th row. This is the answer of first question which they have asked. And second, number of logs in 16th row is 5. So with this, your entire exercise, I tried to complete. 20th question भी हो गया. And please go through with this video too. I think एक दो बार आप देखोगे आपको सारे questions clear हो जाएंगे. And I think you will get lots of doubts clear after watching this video. Please let me know in comment box if you like this video. I will also make videos for other chapters for different classes. And if you like it, please share it with your other friends also. They will also get some benefits. Thank you very much. Take care.